शो में आपका स्वागत है और इस बार हमारे साथ हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट जनाब शरद पवार साहब खुद. Of course, we are not doing this in the studio. We are actually doing this on the 14th floor of the Nehru Center. The Nehru Center, which Mr. Sharad Pawar has been running now for God knows how many years. So we'll ask him. Sharad Pawarji, welcome to the show. Thank you. How long have you been running the Nehru Center, sir? I think I'm a chairman for the last 20 years. 20 years you've been the chairman of this place. Wonderful building, beautiful building. Yeah, and a beautiful place. Credit goes to Barrister Rajni Patel. That was his vision. And the planetarium itself is also lovely. Yeah, that credit goes to Mr. Kadri, who is the eminent architect which this city has produced. One of your favorite architects, That's right. Mr. I.M. Kadri. That's right. The same gentleman who made the guest house at Malabar Hill. That's right. And he also happened to be the Secretary General here. The Secretary General here of the Nehru Center. That's right. The Sayadri guest house has also been made by him. Yeah. So your interest in education has been there now for a long time. In Baramati also you've got a lot of things going on with regard to education, with regard to new technology. Yeah, it's not only in Baramati that I'm associated with many education institutions, and one of the major institutions the state has very popular called Rayat Shikshan Sanstha, which has been set up by late Karmavir Bhaurao Patil, eminent educationist, and I'm a student of that institution, and all of us are associated with that institution for a number of years, at least last 30 years. I'm a president of that institution today, and the total number of students which we are studying in that institution is about 5,86,000. 5,86,000. 5,86,000. 5,86,000 students छात्र पढ़ते हैं उसमें. And free education. बिल्कुल मुफ्त. And this is all interior Maharashtra, in number of districts. There are more than 600 schools and more than 75 colleges. 600 स्कूल हैं और 75 कॉलेज हैं. लेकिन शरद पवार जी अभी बायोटेक्नोलॉजी का भी कुछ आपने खोला कोई इंस्टीट्यूट. मुकेश अंबानी जी वहां पर गए थे और उन्होंने यहाँ तक की अनाउंसमेंट करी थी कि यहाँ के जितने लोग होंगे रिलायंस विल अब्सॉर्ब देम. ये बारामती में कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत मैंने की थी कि एक खास तौर पर एक गर्ल्स एजुकेशन के लिए जहाँ 9,000 लड़कियां पढ़ती है प्री प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएशन पर. दूसरा एक विद्या प्रतिष्ठान नाम की एक विद्या नगरी हमने बनाई है 140 एकड़ का कैंपस में कि जहाँ 12,000 स्टूडेंट्स प्री प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएशन से. इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज, लॉ कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज, सो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन. एंड our efforts are to provide world-class facilities to the students. And for instance, our IT, Information Technology Institutes, hostels, we provided internet facility to every room. Internet facilities in every room. So every room there's an internet output. That's right, in villages. In the village. Yeah. Amazing. Absolutely amazing. So, in effect, so how long have you been doing this? I mean, because you became president of the Maharashtra Youth Congress at the age of 24. आप शायद 24 साल के थे जब आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और 29 साल की उम्र में आप महाराष्ट्र के कैबिनेट में आ गए थे. Basically, I got elected at the age of 26 in 1967. Then इसके बाद 4 साल के बाद I was inducted in government as a Minister of State for Home and You must have been one of the youngest ministers. That's right. And then I was upgraded to Minister of Agriculture, then to Education, then to Home, then to Industry. Then at the age of 38, Chief Minister first time. 38, you were the Chief Minister. Then 4-time Leader of the Opposition. Was that the youngest Chief Minister ever? Or did Naveen Patnaik beat you to it? Or? I don't recollect. But in those days, myself and Anthony. In Kerala, we were the youngest chief ministers in those days. At the age of 38, you were the chief minister of Maharashtra. 38, yeah. So then 4 times I was the leader of the opposition in the state. Then again chief minister. So then 4 times chief ministers. Then went to Delhi. 7 बरस तक आप मुख्यमंत्री रहे शायद. 7 के 8 बरस तक. 32 साल के आपके राजनीतिक करियर में आप 7 के 8 बरस तक चीफ मिनिस्टर रहे. 8-9 साल चीफ मिनिस्टर थे, 8-9 साल मिनिस्टर्स थे यहाँ. 2 साल दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर थे. 1-1.5 साल दिल्ली में लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट थे. तो
अलग अलग किस्म का काम किया है। तो इतने लंबे राजनीतिक करियर में और हर एक पोस्ट आपने ली है, लेकिन उसके दौरान आपको वक्त कैसे मिलता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी देखने का? और मेरी हमेशा राजनीति में एक प्रैक्टिस रही है कि मैं एक अभी 60% काम नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देता हूँ। अभी चुनाव, इसलिए चुनाव के लिए पूरा समय राजनीतिक एक्टिविटीज को देता हूँ, मगर जब चुनाव नहीं रहते तो 60% मेरा समय जाता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को, 40% पार्टी वर्कर्स के लिए। इससे पहले 40% डेवलपमेंट वर्क के लिए देता था, अभी वो बढ़ा है। कई इंस्टीट्यूशंस, अभी एक हम लोगों ने वसंत दादा के नेतृत्व पर एक इंस्टीट्यूशन शुरू की थी पूना के पास। महाराष्ट्र में शुगर केन इज अ मेजर क्रॉप एंड शुगर इंडस्ट्री इज अ मेजर इंडस्ट्री। तो इसमें रिसर्च करने वाले और डेवलपमेंट करने वाले एक इंस्टीट्यूशन जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ पिछले कई सालों से, दादा की मृत्यु के बाद, कि वहाँ 120 साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स काम करते हैं। और ये पहली दुनिया में इंस्टीट्यूशन है कि जो किसानों ने खड़ी की है। महाराष्ट्र का हर गन्ना पैदा करने वाला किसान ₹1 पर टन मुझे देता है, और इससे ये इंस्टीट्यूशन हम चलाते हैं। इसने बहुत कुछ संशोधन किया, शुगर केन की वैरायटीज डेवलप की, मशीनरी अपग्रेडेशन में काम किया, बायो प्रोडक्ट्स के लिए बहुत काम किया, और शुगर टेक्नोलॉजी, अल्कोहल टेक्नोलॉजी का एजुकेशन की भी प्रबंध किया। एक 800 एकड़ का कैंपस वो वहाँ चला रहे हैं। रैयत शिक्षण संस्था है, विद्या प्रतिष्ठान है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन है, नेहरू सेंटर है, चौहान सेंटर है। तो कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, कई जगह पर मैं फाउंडर हूँ, कई जगह पर मैं कई And this is apart from what you do for cricket. Yeah, you're also the president of the MCA. Yeah, MCA. Then I'm a president for last 25 years, Maharashtra Olympic Association. That's right. Last 25 years, Maharashtra Wrestling Federation. And the Kabaddi Association. Kabaddi for last 30. शरद पवार जी, जब आप रक्षा मंत्री थे, मुझे याद है, तो आप गोल्फ आपने खेलना चालू कर दिया था। अभी भी आप खेलते हैं कि अभी वक्त नहीं? आजकल नहीं खेलता हूँ, मगर खेलने के लिए, संभलने के लिए की ख्वाहिश है, और इस चुनाव के बाद फिर शुरू करना चाहता हूँ। बीच में जरा मुझे पैर को कोई तकलीफ थी, इसलिए बंद किया था, और पिछले 3-4 सालों से नहीं खेल रहा हूँ। पर मुझे बहुत पसंद है वो गेम, क्योंकि वो गेम ऐसा है कि दिस इज ओनली गेम वेयर यू प्ले अगेंस्ट योरसेल्फ। दूसरे के खिलाफ कोई खेलने की जरूरत नहीं। राजनीति में तो दूसरे के खिलाफ हम सुबह शाम खेलते हैं, तो कम से कम एक खेल है कि यहाँ आप खुद के खिलाफ खेलते हैं, और दूसरा है कि कम से कम इसमें एक 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर चलना होता है पूरे शहर में। So you play all 18 holes? Generally, I prefer to go play 18 holes. And you, if I recall correctly, you also have this great interest in old books, in these rare books. That's right. And you used to visit bookshops all around Delhi. You used to go to Meerut and other places to pick up all these rare books. पुराने कलेक्ट करता हूँ। मेरे पास अच्छा कलेक्शन था, मैंने बहुत डोनेट किया। 2 कलेक्शंस मेरे पास होती है, किताबों का और फाउंटेन पेन का। मेरे 5000 फाउंटेन पेन्स मैंने बारामती में एक एग्जीबिशन को डोनेट किया है। 5000 फाउंटेन पेन? और वो पिछले 200-250 सालों से के पुराने भी है इसमें। 5000 फाउंटेन पेन्स? What kind? I mean, कलम, पुराने जमाने में कलम लिखते थे वो, और बहुत कुछ 100 साल पहले, 80 साल पहले, 40 साल पहले। मैं इंक पॉट्स और फाउंटेन पेन दुनिया में कहीं भी पुराने दिखाए तो कलेक्ट करता हूँ। एंड बुक्स? मेरा जो थोड़ा बहुत पैसा जेब से खर्चा होता है, ये 2 काम के लिए खर्चा होता है। और शरद पवार जी, यहाँ तक कि लिखाई का सवाल है, कुछ लिखते भी हैं कि नहीं आप? कोई खास नहीं है, कभी जरूरत पड़ी तो लिखते हैं, मगर कोई खास नहीं इसे। और आपका क्लासिकल म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट है? That's right. I like in both Hindustani and Carnatic music? That's right. I do. Do you still listen to a lot? Yeah, whenever time I get opportunity, I do spend time. There are a lot of youngsters are coming nowadays in the classical. It's very, especially from this state, a lot That's of boys right. and girls are coming. That's right. जी, और उस संगीत में आपकी बड़ी चर्चा है। जैसे अभी हमें अवसर मिला था बाला साहब ठाकरे से बात करने का, तो और उन्होंने आपके बारे में काफी अच्छी बातें कही थी। बाला साहब ठाकरे का इंटरव्यू हो तो वो कभी मुझे नजरअंदाज कर नहीं सकते। इनका कोई भी इंटरव्यू इसमें शरद पवार सब्जेक्ट नहीं हो, और उनके बारे में जो उनके बल में जो बिल्कुल गुस्सा है या प्यार है वो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, तो बाला से भी रही है। He said that as far as you are concerned, you had almost worked out a deal with the Bharatiya Janata Party in which the BJP, Shiv Sena and the NCP would have a combination here in the state. बिल्कुल गलत है। बाला साहब को कुछ मालूम नहीं था। बाला साहब एक ऐसे है कि किसी ने कुछ कहा उनको इसके ऊपर हमेशा विश्वास रखते। ये बात सच है कि मैंने खुद पूना में कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पार्टी में तब 3 विचारधारा है।
एक विचारधारा ऐसी है कि जो एनडीए के साथ जाना चाहिए ये कहने वाली है, दूसरी कांग्रेस के साथ जाना चाहिए ये कहने वाली है, और तीसरी लेफ्ट थर्ड फ्रंट के साथ हम लोगों ने एसोसिएशन करना चाहिए ये कहने वाली। इसी when I am a president of the one political party, in my party, when we are supposed to discuss what is a future course of action, and in that agenda, if I get a proposal from different state, different proposals, as I mentioned यहाँ कि भाई एक इंडिया के साथ जाने की, कांग्रेस के साथ जाने की, तीसरा लेफ्ट वालों के साथ जाकर कोई थर्ड अल्टरनेटिव तैयार करने की, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू अलाउ अदर कलीग्स टू एक्सप्रेस देयर फ्रैंक व्यूज। तो मैंने कहा था कि ये हम रखने वाले हैं और इस पर हम अंतिम निर्णय लेंगे। ये बात आ गई तो बड़े फैलाई जोर से कि एनडीए का ऑप्शन हमारे सामने है, एनडीए का ऑप्शन कर रहे थे। ठीक है, मेरे एक सहयोगी, बड़े इंपॉर्टेंट सहयोगी मिस्टर संगमा साहब, वो एनडीए के साथ जाना चाहिए थे, वो कहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अल्टीमेटली गए, उन्होंने पार्टी से बाहर निकलकर उन्होंने एनडीए के साथ जाने का नाता जोड़ दिया। अच्छा, मेरे जो केरल के साथी थे तो वो कहते उनका कांग्रेस के साथ जाने के खिलाफ नहीं थे, मगर केरल में हम लेफ्ट पार्टी के साथ है, पिछले 2-3 चुनाव भी हमने उनके साथ लड़े हैं, तो इसलिए मेरे वहां के लोग लेफ्ट पार्टी के साथ है, मगर वो इंडिया के साथ नहीं है। तो इसलिए ये अल्टरनेटिव्स, ये अलग अलग विचारधारा मेरी पार्टी में थी, ये बात मैंने कही। इस पर हमारे यहाँ बहस होने वाला है। ये कहने के बाद जरूर एनडीए के कुछ लोगों ने इनिशिएटिव ले लिया, और इस पर शायद मुझे ऐसे लगता है कि उनको लगा कि ये हो रहा है, संगमा जी आने की परिस्थिति में, संगमा जी बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे, पार्टी में ये राय रखने वाले हैं। संगमा जी एक इम्पोर्टेंट नेता थे, बिल्कुल थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसलिए शायद पार्टी ये लाइन स्वीकार करेगी, और ये लाइन स्वीकार करेगी तो सबसे समस्या महाराष्ट्र में बाल ठाकरे से आएगी, क्योंकि बाला साहब के और हमारे रिश्ते दुनिया को मालूम है। इसलिए शायद अडवाणी जी हुआ या कोई लोग, उन्होंने हमसे बात करने से पहले उनसे बात की हुई, तो उनको लगा कि ऑलमोस्ट ऑल सब तय हुआ है। मगर दूसरे यानी 2 दिन के मीटिंग में हमारे यहाँ बिल्कुल वोटिंग हुआ प्रैक्टिकली। सो 6 वेर सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ गोइंग विथ इंडिया, 6 लोग 18 वेर सपोर्टिंग द आइडिया with going with Congress. 18 for the Congress, 6 for the NDA. And then ultimately, I was authorized to take final decision, so I have taken the final decision to go with Congress. और बाला साहब ठाकरे ने तो यहाँ तक ये तक कह दिया कि भाई मैंने कंडीशन रखी थी कि भुजबल को निकाल दीजिए, उसके बाद आ जाइए। हाँ, उन्होंने कहा था, पब्लिकली कहा था। बाला साहब की एक बात होती है, जो कुछ कहना चाहते वो कभी छिप से कहते नहीं, पब्लिकली कहते। तो उन्होंने कहा था, अच्छा यहाँ भुजबल साहब को दूर करने की कोई सवाल ही नहीं था। भुजबल साहब तो हमारे एक इम्पोर्टेंट कलीग्स है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ उनके साथ जाने की भी बात नहीं थी, तो इसलिए उनकी कंडीशन का स्वीकार क्यों करें। मगर एक भुजबल के बारे में, मेरे बारे में जैसे उनके मन में एक प्यार है, दिलचस्पी है, ऐसे भुजबल जी के बारे में भी एक खास प्यार, दिलचस्पी है, तो उन्होंने एक्सप्रेस किया। जी हाँ, बाला साहब के साथ बात करते वक्त आपका जिक्र जरूर आता है और भुजबल जी का जिक्र भी अवश्य ही आता है हर एक चीज में, लेकिन आपने आखिर में निर्णय लिया कि कांग्रेस के साथ आप जाएंगे। इट वाज आवर कलेक्टिव डिसीजन। दैट्स राइट, बिकॉज़ द मेजॉरिटी फेल्ट दैट यू शुड गो विद द कांग्रेस। नॉट ओनली दैट, मगर हम लोग जिस पूरी जिंदगी में जिस राजनीति में हम रहे हैं, जिस विचारधारा के आसपास है, इस रास्ते से जाना ठीक है। और ये मत भूलिए कि हम सब लोग कांग्रेस में थे। ये अभी बाला साहब भी कहते थे कि भाई उनको निकाला। आई हैव नॉट रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, आई नेवर सेड दैट आई हैव रिजाइन कांग्रेस, आई हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस because I have taken certain stand in the Congress party, that's why I have been expelled. Myself, तारिक अनवर या संगमा जी, हम लोगों को एक्सपेल किया है। मगर इसलिए हम लोगों ने भी नया मंच तैयार करने की बात हमारे सामने आ गई, तो इसमें हमने कांग्रेस नाम रखा, नेशनलिस्ट कांग्रेस। अच्छा, हमारा फ्लैग में भी वो ट्राइकलर ही है, अलग तरह से है, लेकिन ट्राइकलर। अच्छा, हमारी पूरी आप जो प्रोग्राम देखेंगे तकरीबन कांग्रेस की कोई दूर है ऐसी परिस्थिति नहीं, कुछ इश्यूज पर हमारे। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो खत्म हो गया है, क्योंकि कांग्रेस में जिस बात पर विवाद था कि विदेशी मूल का जो मुद्दा था सोनिया गांधी जी को लेके, अभी क्या वो मुद्दा खत्म हो गया है या अभी उसको सिर्फ चुनाव की वजह से जरा दबा दिया गया? सिंपल बात यह है कि इसमें
मिसेस गांधी ने पार्टी की जिम्मेदारी स्वीकारना या और कुछ क्षेत्र में करना या पार्लियामेंट में करना, इसमें कोई हम लोगों का कोई विरोध नहीं था। इनफैक्ट हम जब साथ थे तो साथ ही काम करते थे। वो खुद पार्टी की प्रेसिडेंट थी, मैं खुद प्रतिपक्ष का लोकसभा का नेता था, हर दिन हम मिलकर ही सब काम करते थे, तो वहां कोई समस्या थी नहीं। मगर ये जरूर बात थी कि हम लोगों ने ये बात जरूर कही कि देश की नेतृत्व करने की जब जिम्मेदारी आएगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर, इस देश की जनता किसी भी जो हिंदुस्तान में जिसकी पैदावारी हुई इस व्यक्ति को स्वीकार करेगी, नहीं तो ये पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। ये बात हम लोगों ने जरूर की थी, आज भी हमारी बात है। और आज ही शायद आज के अखबार में देखा होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट है कि आई एम नॉट प्रोजेक्टिंग माई सेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। ये चुनाव के बाद बैठकर तय करेंगे सब पार्टीज मिलकर, ये आज समस्या नहीं। तो हम लोगों ने भी आज जो समस्या नहीं है तो इस इशू पर आज झगड़ा काहे के लिए करेंगे। इसलिए हमने जो हमारे ऊपर कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, बाला साहब ने कहा था कि भाई ये तो बोलते हैं कि ये मुद्दा तो हमने छोड़ा नहीं मगर आज हम दूर रखा है। बिल्कुल बराबर है कि जो मुद्दा आज देश के सामने नहीं है, तब जो मुद्दा ही देश के सामने नहीं वो काहे के लिए निकालना, और इस और छोड़ा नहीं। जैसे हमारी जो एक नीति है, मूलभूत जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें तो हमने ये छोड़ा नहीं, ये बात तो हमने पब्लिकली कही। मगर कुछ भी कहा, इस समस्या ही सामने आई नहीं तो काहे के लिए निकालना था। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया था कि बाला साहब को याद नहीं होगा शायद कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये कहा है कि राम जन्म मंदिर भूमि का मुद्दा हमने छोड़ा नहीं, आज छोड़ा है, मगर पार्टी ने छोड़ा नहीं। और आज एनडीए में ये इशू हम लाना नहीं चाहते जी। मुद्दा ये पार्टी का मुद्दा रहेगा, मगर जब हम लोगों को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगी तब हम देखेंगे, ये उनकी बात है। तो आज उन्होंने मुद्दा लाया नहीं, वैसे आम लोगों ने आज ये मुद्दा लाया नहीं, क्योंकि हमें आज लगता है कि आज देश के सामने एक विकल्प की जरूरत है। जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पैदा हुई है, फॉर इंस्टेंस अपने इस राज्य में जहां से हमें इंटरव्यू दे रहा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग सूखे में फंसे हैं, पीने का पानी की समस्या बड़ी गंभीर है, काम की रोजी रोटी का सवाल है, जानवरों को चारा का सवाल है। और ऐसे समय हम तो चाहते थे कि इस सूखे का सामना करना पहला फर्ज है लोक प्रतिनिधि का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का। और ये सूखा महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र में है। ये चुनाव इतने जल्दी लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चुनाव आज अक्टूबर में लेते थे, हम पूरी तरह से सूखे में फंसे हुए लोगों को मदद करने के लिए और ध्यान देते थे। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगी थी। आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान सब इलेक्शन का प्रिपरेशन में गया। अच्छा, कुछ भी करिए तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका भी समय इसमें जा रहा है। मगर ये चुनाव उन्होंने जल्दी किया। क्यों किया? उनको लगा कि उनको एटमॉस्फेयर ठीक है। उन्होंने ये देखा नहीं कि 2 करोड़ लोगों की हालत क्या है, पीने की पानी की समस्या किस तरह से हल करी। और दूसरी तरफ से ऐसी जब एक नैसर्गिक नेचुरल कैलेमिटी आती है तब भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है किसी सरकार को मदद करने के लिए। आज महाराष्ट्र सरकार हर दिन पीने का पानी चारा के लिए 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए पर डे खर्चा करती है। 5 से 6 करोड़ हर रोज का खर्चा है। और उन्होंने अभी तक 1300 करोड़ रुपए खर्चा किए और ये सीजन खत्म होने तक उनको 1700 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्होंने 1700 करोड़ रुपए की मांग की केंद्र सरकार के पास, भारत सरकार के पास। भारत सरकार ने 70 करोड़ रुपए दे दिए। जब 10 लाख टन अनाज मांगा तब 2,80,000 टन अनाज दे दिया। जब हम 18 देशों को विदेश में अनाज देते हैं, इसी बात कही भारत के प्रमुख नेता लोगों ने, तो हमें गर्व है, अच्छा काम है। मगर वहां हम 50% कीमत से देते हैं 18 देशों को अनाज, और हमारे साथियों को जब सूखे में पड़े हैं तब अनाज देने के लिए तैयार नहीं। Now we come to a very, very important question, and that concerns elections more than anything else. What is the effect of the Telgi scam going to be? ये तेलगी स्कैम जो है, इसके ऊपर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति इस पर निर्भर है। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को कि तेलगी से क्या जो प्रॉब्लम है लोगों के सामने रखने के लिए। ये तेलगी का मामला निकला कब? तेलगी इस लाइन में शुरू कब आए? तब किसकी हुकूमत थी? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की हुकूमत थी जब उनका स्टैम्प निर्माण हो गया। स्टैम्प निर्माण करने के लिए उन्होंने शुरुआत कब से की और किसने उनको सहयोग दे दिया? उनको सहयोग मिला नासिक सिक्योरिटी प्रेस से। नासिक सिक्योरिटी प्रेस में किसने मदद की उनको? कोई गंगाचरण नाम के कोई एक ऑफिसर वहां आ गया, उसने उनको मदद किया। इसको किसने लाया?
अटल बिहारी वाजपेयी के मिनिस्ट्री में काम करने वाले एक मिनिस्टर ने अनिल गोटे साहब के कहने से रिकमेंडेशन किया कि फाइनेंस मिनिस्टर को कि इस आदमी को वहां अपॉइंट करो, एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने शायद इस लेटर का स्वीकार करके वहां उनको अपॉइंट किया। और उस आदमी ने जो प्रेस जिसमें ये सब प्रिंटिंग होता है, ब्लॉक्स, रूल के मुताबिक वो डिस्ट्रॉय करना चाहिए, मगर बिना डिस्ट्रॉय करते तेलगी को दे दिया, और तेलुगु ने पैरेलल प्रिंटिंग शुरू हो किया। तब किसकी हुकूमत थी? तब हुकूमत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। दिल्ली में तब हम लोगों की हुकूमत नहीं थी, हुकूमत उनकी थी। So are you saying that the finance minister who gave the recommendation was Mr. Yashwant Sinha at that time? Whoever is the finance minister, but Bajpayee government finance minister, that I can tell you. Okay. And he has given permission to appoint that particular person there, कि जिसने ये सब काम किया, कि जो ये तेलगी, गोटे, अन्य लोगों से वो मिले आए थे, और ये सब एक्सपोजर करने का काम ये नई गवर्नमेंट आने के बाद पूना के बन गार्डन में जब पकड़े, तब स्पेशल टीम तैयार करके भुजबल जी ने इसमें दिलचस्पी ली और ये पूरा एक्सपोज कर दिया। और इसलिए ये बड़ा मौका है कि ये लोगों के सामने बताने के लिए हम एक एक कागज दिखाएंगे कि ये कब का है, किसने लेटर लिखा था। इसकी कॉपीज हैं हमारे कई साथियों के साथ, हमने रखी है कि हमें मालूम था कि बाद में ये सब चोरी करने वाले लोग क्या बोलते हैं, तो उल्टा डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह से परिस्थिति पैदा करेगी। इसलिए रिकमेंडेशन का कॉपी, वहां जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए थे शुरू में, इसकी अपॉइंटमेंट किसने की, उसको प्रमोशन करने के बाद भी वहां ही अपॉइंट करो, ये खत किसने, ये ऑर्डर किसने ली, ये सब कागजात। और इसमें जो किंग पिन है मदद करने वाला, जो अनिल गोटे, वो किसके सपोर्ट पर डिप्टी स्पीकर के लिए यहाँ खड़ा था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा धुलिया में खड़ी की अनिल गोटे साहब ने, तब वहां जो शिलान्यास किया था, इसमें किसका नाम था? इसमें शिवसेना के चीफ मिनिस्टर के या नेता लोगों के साथ तेलगी का नाम था या नहीं था? इसके सब सबूत है हमारे पास, और ये सब दिखाने वाले हैं। खाली हम फोटो दिखाने वाले नहीं, फोटो क्या ट्रिक से कोई भी किसी का दिखा सकते हैं, मगर वहां शिवसेना बीजेपी के नेता लोगों के साथ शिलान्यास पर तेलगी का भी नाम लिखा है। ये बात जरूर दिखाएंगे, पूरा सब एक्सपोज करने के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन शरद पवार जी, अभी तक तो सारे के सारे वार जो हो रहे हैं वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। ये पहली बार है कि आप इतना खुल करके बोल रहे हैं। डोंट यू थिंक यू शुड हैव स्टार्टेड सेइंग दिस स्लाइटली अर्लियर? नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने भी तय किया था कि ये कब लाना है। ये जब चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा, तब ये सब डॉक्यूमेंटेशन और सब लोगों के सामने लाकर उनको पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम करना पड़ेगा, और ये करेंगे हम। So are you essentially saying that Chhagan Bhujbal ji was involved only in ordering the investigation? That's all that you're saying. Chhagan Bhujbal was not only involved, but he is the person who has taken keen interest to expose this and given full strength and support. लेकिन यहाँ मामला तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। छगन भुजबल जी को तो ऑलमोस्ट एक्यूज्ड बताया जा रहा है इस केस के अंदर। उनको बुलाया, क्योंकि इसमें कुछ जो ऑफिसर्स बाद में आ गए, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में उनको बुलाया, उनको बतलाया गया, मालूम नहीं कहाँ तक वो ठीक था, मगर बुलाया। और एक बात उन्होंने मुझे पूछा था, मैंने कहा कि कहीं भी बुलाया हम लोगों को, इन्वेस्टिगेशन करने वाले उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोगों का फर्ज है कि वहां जाकर उनको ठीक तरह से सहयोग देना, जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो इनाम ईमानदारी से उनको देना, और उन्होंने किया। वो शरद पवार जी, आपका शुरू से स्टाइल रहा है, जो भी आपको ऑब्जर्व किया लोगों ने, जितने भी पत्रकार रहे हैं, कि आप ज्यादातर एक्यूजेशंस को नजरअंदाज करते हैं, आप रिप्लाई करते नहीं यूजुअली। बट इन दिस पर्टिकुलर मैटर, जहां तक भुजबल जी का सवाल है और उनके नेफ्यू समीर भुजबल जी का सवाल है, उनके बरखिलाफ जिस तरीके से कैंपेन चली, सारी प्रेस में कैंपेन चली, बार बार गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी जी ने बार बार हमला किया और ये कहा कि तेलगी ने एक मंत्री को 20 करोड़ रुपए दिया, मैंने भुजबल का नाम नहीं लिया। इस तरीके से नितिन गडकरी जी ने बार बार बोला है। तो आपको लगता नहीं है कि आप लोगों से थोड़ी सी गलती हुई है, दैट यू शुड हैव स्टार्टेड? बिल्कुल गलती नहीं हुई कि ये लोग बार बार झूठे बोलते हैं। ये बात लोगों के सामने साबित हुई। 20 करोड़ रुपए एक मिनिस्टर को दे दे, क्यों नहीं एस्टेब्लिश हुआ अभी तक? ये लोग जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं। ये लोगों ने कहा था कि ये दोनों साइमल्टेनियसली चुनाव नहीं होगी तो हम इस्तीफा देंगे।
3 बार कहा था उन्होंने आकर, इसी उद्धव ठाकरे ने, इसी प्रमोद महाजन ने, इसी मिस्टर मुंडे ने और ये गडकरी जी ने 3 बार उन्होंने कहा था, टेलीविजन पर कहा था, कई पब्लिक मीटिंग में क्यों नहीं दिया? बोलने की बात एक और करने की बात है, इसको भी एक गट्स लगते हैं। किसी के खिलाफ एलिगेशन करे तो प्रूव करने की कैपेसिटी चाहिए। मुझे याद है कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने 10 साल पहले ऐसे एलिगेशन किए थे, कभी दाऊद अबरू के बोल रहे थे, कई किसी के बोल रहे थे, और चाहे इनके हाथ में 5 साल हुकूमत थी, और 5 साल की हुकूमत में बाद में जब उनके हाथ में हुकूमत आ गई 2 साल के बाद सवाल पूछा गया उनको ऐसे एक चैनल पर कि भाई क्या हो गया, आप इसमें इल्जाम लगा रहे थे, आपने बड़ी डेप्थ से इंक्वायरी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि क्या हुआ? नहीं, इस पे कोई सच्चाई नहीं है, बात हमारे सामने। जी हाँ, मुझे याद है, बिकॉज आई यूज्ड टू बी द एडिटर ऑफ द डेली एट दैट टाइम एंड वी हैड आल्सो पब्लिश्ड द सेम थिंग। मिस्टर खैरनार वाज इन्वॉल्वड इन रेजिंग दिस सब्जेक्ट अगेंस्ट यू। ट्रक लोड मटेरियल देने वाला था। जी हाँ, मगर ठीक है, but nothing happened. Nothing happened. It was said that not Mr. only Dawood that, Ibrahim had been calling you up and you had been having a conversation with him. That's what was said. That they, and ultimately it proved each and every word is total lie, and all the agencies, everybody who has investigated, they have also said that this is all fabricated and lie. लेकिन शरद पवार जी, आपको जो आपने एग्जाम्पल दी, मैं वही बात कर रहा हूं कि ये बात 93, 94, 95 की है। ये भी एक वजह थी कि 95 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आ गई, क्योंकि आपने एज यूजुअल मौन व्रत धारण कर लिया इस पे और आपने बात नहीं करी। बिल्कुल ये वजह नहीं थी। तब भी 1 नंबर की सीट कांग्रेस को ही मिली थी। तब कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े पैमाने पर बगावत हुई थी। आप ताजुब लगेगा, तब 40 एमएलए कांग्रेस के इंडिपेंडेंट चुनकर आए, और ये सब मिलकर सरकार बनाने की तैयारी की थी। तब मैं सरकार बना सकता था, मेरे पास मेजोरिटी थी, मगर मैंने खुद गवर्नर साहब, और मुझे इलेक्ट भी किया था पार्टी ने सरकार बनाने के लिए, और मुझे कहा गया था पार्टी के माध्यम से कि आप जाकर वहां आपके अधिकार दे दो सरकार बनाने का। बीइंग अ लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर टू कॉल मी and give me oath, but I said no, because I might be this leader of the single largest party, but I don't enjoy the clear-cut majority, and I have no moral authority to rule the state when I don't enjoy the majority. That's why I gave a letter, I don't want to form government. I remember you said at that time it would have been very difficult to manage because there were 40 to 45 other people. मैनेज करने में भाई हमारा हाथ कोई पकड़ेगा नहीं, किस तरह से मैनेज करना, मगर हम नहीं करना चाहते थे, छोड़िए। You prefer to read Margaret Thatcher's book at that time instead of farming the government, if I remember correctly. That audio book of Margaret Thatcher that just come out at that time in 95. You were reading it. Do you still listen to audiobooks? Sometimes when I generally go to outside India once in the year, so I just collect all these things from. And you just shifted to your new residence. Not just shifted. See, I just shifted to my son-in-law and daughter's house. They are staying there because I can spend some time with my grandchildren. Absolutely wonderful. But so you don't think you've delayed matters as far as the Telgi matter is concerned? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तेलगी मैटर में सच्चाई बिल्कुल लोगों के सामने आ रही है और आएगी, और ये लोग इसमें एक्सपोज होने वाले हैं। और मैं किसी के खिलाफ पर्सनल इल्जाम नहीं करता है, इनमें से भी कोई या मुंडे हो किसी हो, कि मगर ये बात है कि ये सब तेलगी एपिसोड इनकी हुकूमत में बढ़ा है। तेलगी को, क्योंकि तेलगी का ओरिजिनली है नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के है। ये सब उनकी जो कोई पैदाइश हो गई, प्रॉस्पेरिटी हो गई, ये सब नासिक सिक्योरिटी है। नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड जब ये सब हो गया तब फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व वाली सरकार इंडिया वालों के हाथ में थी। और ये भी कहा जा रहा है, जहां तक के तेलगी मामले का सवाल है, कि तेलगी को जो सबसे पहली परमिशन दी गई थी वो विलासराव देशमुख जी जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे आपकी सरकार के दौरान तब दी गई थी। हो सकता है भाई, तब कोई किसी ने इंडिविजुअल, उन्होंने कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, किसी एक जर्नलिस्ट ने आकर किसी के एक रिकमेंडेशन उन्होंने की, उन्होंने नीचे एक्शन के लिए भेजते। कई लोगों को गवर्नमेंट की प्रोसीजर क्या मालूम नहीं। समझो आई एम अ चीफ मिनिस्टर, सपोज यू गिव मी एप्लीकेशन फॉर पर्टिकुलर पर्पज, इसमें मैंने लिखा कि भाई आप प्लीज कंसिडर सिंपैथेटिकली, प्लीज कंसिडर सिंपैथेटिकली जब मैं लिखता हूँ ये ऑर्डर नहीं होती। That's right. तो इसमें से कई बार नीचे से आता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल टू कंसिडर सिंपैथेटिकली, दीज आर द रीजंस, एंड देन फाइनल डिसीजन इज टेकन। और इसलिए विलासराव के पास किसी ने एप्लीकेशन भेजा तो ये मिनिस्टर का फर्ज है
कि ऐसे जब एप्लीकेशन आते हैं और प्रोसेस करने के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट में भेजा, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप शरद पवार जी ये बताएं कि इसका मतलब व्हाट इज दिस नॉइज ऑल अबाउट? आर यू सेइंग दिस इज ऑल noise, this is all smoke without any fire? No. Basically, those who were really worried and those who were facing guilty consciousness, they were trying to make more noise. They were trying to divert entire investigation from one angle to another angle. And unfortunately, SIT, they were doing good job, good officer, honest officers, but unfortunately, उनको भी ये जो मीडिया में पब्लिसिटी बहुत मिलने के बाद दिमाग खराब होता है। मैं क्रिकेट का प्रेसिडेंट हूँ, मैं देखता हूँ कई नए लड़के अच्छी तरह से जब खेलना शुरू करते हैं और जब आप लोग ज्यादा उनको पब्लिसिटी देते हैं तो उनका परफॉर्मेंस खराब होता है, क्योंकि मीडिया भी एक दिमाग खराब करता है। वैसे SIT के ऑनेस्ट ऑफिसर को भी मीडिया ने दिमाग खराब किया और उन लोगों ने अपने जो झगड़े थे, इंटरनल डिस्प्यूट विद इन IPS ऑफिसर, वो सेटल करना शुरू किया। You mean they tried to settle scores among themselves? And they also they had done really harm to Maharashtra police and Bombay police. Right, and as far as the police is concerned, I suppose the morale, or for that matter, the reputation of the police has never been so bad as it is right now. And totally demoralized. And secondly, आप ये देखिए, मैं किसी के खिलाफ पर्सनल नहीं, मगर जिन लोगों ने बार बार पुलिस के खिलाफ हमेशा रिट एप्लीकेशंस किए थे इससे पहले 5 साल 10 साल में, और बम्बई पुलिस की, मुंबई की पुलिस की हमेशा एक डिमोरलाइज करने का काम उन्होंने किया। आप देखिए, मेंडोसा नाम का एक अच्छा कमिश्नर था, कितना समय वो कोर्ट में जाता था और उनके खिलाफ कोर्ट में रिट एप्लीकेशन कौन देते थे? यही लोग। इस केस में क्या उनका रोल था, ये कभी तो जांच करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने हमेशा पुलिस के खिलाफ गलत लोगों को सामने रखकर पुलिस के खिलाफ इल्जाम कोर्ट में लगाए, यही लोगों ने इस केस में पुलिस को टोटल डिमोरलाइज करने के लिए जो कुछ कर सकता है वो किया, और हमारी SIT इसमें विक्टिम बन गई। और जब कुछ होता है तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसमें बहुत कुछ दिलचस्पी लेती है। राइट, एंड मिस्टर शरद पवार very clearly pointing the finger at all of us, saying that we are responsible for perhaps having turned the head of the SIT just a little bit. तेल की मैटर में जिस तरीके से आपने कहा कि कभी कभी मीडिया की तरफ से क्योंकि इतना प्रेशर होता है और कितनी ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, तो बढ़िया से बढ़िया ऑफिसर भी जो होते हैं, बड़े से बड़े ऑफिसर भी जो होते हैं, उनका भी दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है। और इस मैटर में आपके मुताबिक ये लग रहा है कि प्रशासकीय तौर पर जो विवाद थे पुलिस में, वो शायद SIT में बाहर आए हैं। इसमें दो बातें हैं कि इसमें कुछ पुलिस अधिकारियों ने गलत काम किया, इसमें दो राय नहीं, और जो गलत काम किया उनको SIT ने बुक किया, ये अच्छा किया, मगर उन्होंने एक माहौल ऐसा पैदा किया कि दैट एंटायर पुलिस फोर्स इट्स अ बंच ऑफ क्रोक्स, और बॉम्बे पुलिस ये सब बदमाशों की टोली है। इस तरह की एक परिस्थिति उन्होंने जो पैदा की, इससे बड़ा नुकसान हुआ पुलिस का। और आपने खुद कहा कि इसमें प्रेस की बहुत जिम्मेदारी है। मैं प्रेस के खिलाफ इल्जाम नहीं लगाता था। आपकी कोई समस्या है, आजकल 24 आवर चैनल बनने के बाद कंटिन्यूसली बाइट चाहिए। That's right. What is called the whole news is in sound bites. लेकिन इसमें फिर अगर ये बात थी शरद पवार जी, तो भुजबल साहब को इस्तीफा देने के लिए, भुजबल साहब ने इस बारे में इस्तीफा दिया है, बिल्कुल गलत। ये 100% बात सच है कि जब ये जी पर जो हमला हुआ, इसके बाद वो इतने अपसेट होकर मुझे मिले कि बोले कि भाई मेरे लड़के ने ये सब किया कि क्या मैं जवाब दूं, और इसलिए मैं कानून हाथ में लेकर जो कोई इस बारे में सच्चाई देने के लिए प्रयास करते हैं, इनके खिलाफ हमारे लोग इस तरह से कदम उठाते हैं। यही बात मेरे और पूरी देश की मीडिया मेरे खिलाफ जाएगी। लेकिन ये वजह जब हर एक को बताई जाती है बराबर है, कोई हंसता है। सच्ची लोगों को स्वीकार करते नहीं, ये बात सच है, मगर है ये सच है सच, क्योंकि मुझसे ही बात उन्होंने की, इजाजत मुझसे ही मांगी और मैंने ही इजाजत दे दी उनको इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि CCTV में जाकर के जो भी तोड़फोड़ हुई थी वहां पर। लेकिन जहां तक SIT का सवाल है, अगर उसके बारे में थोड़ी सी और बात करें, उसके बाद वील मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अब CBI को केस हैंड ओवर कर दिया गया है, तो आज की तारीख में SIT का क्या महत्व रह गया है? मुझे मालूम नहीं इसमें क्या होगा, क्योंकि आज या कल कोर्ट इस बारे में कुछ तय करने वाले थे कोर्ट के सामने। क्योंकि ये SIT, बहुत लोगों के कहना यह है कि SIT हैज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। नो, SIT वाज अपॉइंटेड बाय मिस्टर भुजबल हिमसेल्फ। दैट्स राइट।
बाद में एसआईटी को असिस्टेंट करने के लिए कुछ बाहर के लोगों को लाया, जैसे पूरी साहब को लाया और कुछ, ये हाईकोर्ट के माध्यम से लोग आ गए, ये बात सच है. It was supposed to report to the High Court. High Court, That's yeah. all. It was not appointed by the High Court. No, it was appointed by Maharashtra government and not less than Mr. Bhujbal himself. That's right. And very unfortunately, Mr. Bhujbal himself has become the victim of having appointed a special investigation team. Which is... होता है कभी कभी जिंदगी में, जाना पड़ता है कुछ कठिन समय से, मगर एक अच्छा होता है कि इससे बाहर निकल के बाद एक बार लोगों के सामने सच्चाई आने के बाद आदमी भी ठीक तरह से बाहर. और ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि भुजबल साहब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है. मालूम नहीं, लेकिन उनको टारगेट बनाने की बात पहले दिन से शुरू थी, ये बात मैं देख रहा था. लेकिन भुजबल साहब अभी भी आपके साथ हैं 100%. बिल्कुल आपके भरोसे वाले जिम्मेदार लीडर. He is an important campaigner. You will see from in another 2 days time. He's an important campaigner. And he will expose this entire thing. पूरे महाराष्ट्र में जाकर, महाराष्ट्र के बाहर में जाकर क्या सच्चाई है उस आम जनता के सामने जाकर देखें. उसको भी एक करेज लगता है, वो करेज है इनमें. That's right. He's always been a fighter. On that there is no doubt. In spite of all the pressures on him. लेकिन जहां तक कि आपका खुद का सवाल है शरद पवार जी, आपको खुद को क्या उम्मीदें हैं नेशनल पॉलिटिक्स में? व्हाट इज योर विजन? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? कि जिस तरह से किसानों की स्थिति हो गई, जिस तरह से 50%, 60% से कारखाने बंद हो गए और मजदूरों की हालत खराब हो गई, और जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो कमिटमेंट की थी एडिशनल जॉब क्रिएट करने के लिए, उन्होंने माना, अटल जी ने खुद माना हैदराबाद में उनकी वर्किंग कमेटी या कई एग्जीक्यूटिव में, कि इसमें हम कुछ काम नहीं कर सके. और जो परिस्थिति पूरे देश के नौजवानों की हुई, इससे इस सरकार के बारे में. और चौथी जो बात है कि एक बहुत बड़ा फसाद पूरे दुनिया ने देखा कि जो गुजरात में हुआ, और इसमें मैं ये समझ सकता हूं कि कई फसाद हो गया, होता है, सरकार ने सख्ती से कदम उठाना चाहिए, मगर ये नहीं समझ सकता कि जब गुजरात में इतने बड़े पैमाने पर खून खराबी हो गई, देश के प्रधानमंत्री प्रदेश जाने के लिए निकले, और तो एयरपोर्ट से कहते हैं मोदी साहब को, क्या मैं किस तरह से चेहरा दुनिया को दिखाऊं, क्या जवाब दूं मैं दुनिया को. और 8 दिन वहां से आने के बाद गोवा में उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव में वहां की स्थिति गुजरात की बड़ी अच्छी तरह से हैंडल मोदी साहब ने की, इसलिए उनको धन्यवाद भी देते हैं. इतनी कॉन्ट्रडिक्शन. मैं राजनीतिक, अभी उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बोले वहां, मैं समझ सकता हूं कि भाई ठीक है, वहां उनका कैंडिडेट मेरा पार्टी का कैंडिडेट है और वहां बड़ी सख्ती से लड़ाई हमारी और उनकी पार्टी की है, और इसलिए वहां कुछ क्रिटिसाइज किया, तो मैं समझ सकता हूं, ठीक है, राजनीति में चलता है. मगर तब चुनाव नहीं था, तब देश का प्रधानमंत्री बाहर जाते समय इस तरह का एक स्टेटमेंट करता है, हफ्ते में आने के बाद इस तरह का अलग स्टेटमेंट करता है. एक लिमिट है कॉन्ट्रडिक्शन की. लेकिन उसके बावजूद गुजरात में बीजेपी को इतने तौर पर बहुमत मिला. मिले. एक बार आप कभी भी देखिए कि जहां हमेशा कम्युनल राइट्स होते हैं, वहां सेक्युलर फोर्सेस की पिटाई होती है और माइनॉरिटी फोर्सेस की पिटाई होती है, और जो कम्युनल लाइन लेता है उनका फायदा होता है. आपने जब बात की 1995 की, मुंबई शहर में 92-93 में दंगे हुए थे, मुंबई शहर में टोटल बेनिफिट बीजेपी शिवसेना को मिला था. ये हमेशा की बात है. पूरे 1947 से आज तक आप देखिए जहां दंगे हो गए. लेकिन अगर 92-93 की बात करें तो, and the only question I want to ask about the 93 riot, because everybody has discussed it to quite an extent, उसके छींटे थोड़े आप पर भी पड़े, और अभी जाकर के शायद आपकी जो सेक्युलर इमेज है वापस आई है, क्योंकि परसेप्शन ये हो गई थी एज इफ यू हैव जॉइंड फोर्सेस विद द अदर साइड. दैट टाइम मेरे खिलाफ सरसों भी आई थी कि यहाँ आकर मैंने कुछ सख्ती से कदम नहीं उठाए मिलिट्री को बोलकर, मगर ये बात श्री कृष्ण कमीशन के सामने आ गए, और श्री कृष्ण कमीशन ने इसमें साफ कहा कि हमारा रोल ठीक था, मिलिट्री का रोल ठीक था. ये लोगों को मालूम नहीं था कि कहीं भी मिलिट्री जब बुलाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि राइट शुरू है तो मिलिट्री ने कंट्रोल लेना चाहिए, फायरिंग करना चाहिए. मिलिट्री को ये अधिकार नहीं इस देश में. कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस एंड अनटिल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गिव क्लियर कट रिटर्न ऑर्डर टू द आर्मी इन चार्ज, दे कैन नॉट टेक एक्शन इन दिस. और so moto, Government of India cannot send military to anywhere unless the local government so invites. State government or the district magistrate so invites.
That's right. लोगों को लगा कि ये डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं भेजा उन्होंने, ऐसे भेज नहीं सकते, जाने दीजिए। So, but as far as the BJP is concerned, or the NDA is concerned, you think all these factors will work against them? डेफिनेटली, Including the so-called feel-good factor and the Shining India डेफिनेटली campaign? स्टेट बाय स्टेट कई स्टेट ऐसे हैं कि मैं बताता हूं कि वहां उनको सेटबैक मिलेगा। मुझे सिर्फ चिंता एक है कि इसके बाद ठीक तरह से सभी बाकी पार्टियों ने मिलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। एक बात सच है कि हिंदुस्तान में सिंगल पार्टी रूल, ये बात खत्म हो गई। हम जिस पार्टी में कई साल रहे हो, कांग्रेस का, हम लोगों की एक मानसिकता थी कि हम ही रूल करने के लिए पैदा इस देश में हुए और पूरी देश की हुकूमत कांग्रेस के पास या हमारे पास हमेशा रहने वाली है। मगर ये बात सच हो गई कि लोगों ने अभी कहा कि ठीक है, 40 साल ये मौका दे दिया, अभी मिलकर आप देश चलाइए। जहां जहां दुनिया में डेमोक्रेसी है, इनमें से 60% कंट्रीज में आज सिंगल पार्टी रूल नहीं करती, कोalition करती, और 50-50 सालों से कोalition चालू है। हिंदुस्तान में भी कोalition चलेगा। सब लोगों को कोalition में मिलकर काम करने की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। मिनिमम एग्रीड प्रोग्राम करना पड़ेगा। छोटी बड़ी पार्टी इसमें कोई अंतर रखते बिना काम करना पड़ेगा। और लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि कोलिशन को कैसे पूरे टर्म तक चलाया जा सकता है। बिल्कुल बराबर है, उन्होंने चलाया। ये तो इसमें बारे में तो दो बात नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। इसलिए मैंने यही कहा कि उनको लोग दूर करेंगे, और इसलिए हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम देश को 5 साल के लिए स्टेबल गवर्नमेंट दे दें और रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट दे। बट द ओनली थिंग इज व्हेनेवर द अदर साइड हैज कम टू पावर, जैसे कि सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस जब आ जाती हैं पावर में, तब हमेशा इंस्टेबिलिटी रहती है insofar as coalition। क्योंकि इससे पहले कभी ये इनसिक्योरिटी, क्योंकि सरकार चलाने के लिए मिलकर सरकार चलाना, ये मानसिकता ही नहीं थी। खाली सेक्युलर फोर्सेस की बात नहीं थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, तब किसकी मदद से हुए थे? बीजेपी की मदद। 119 सीटें थी बीजेपी की। तब बीजेपी ने उनका सपोर्ट विड्रॉ करके तो उसकी सरकार गई थोड़े दिन, क्योंकि तब तक पूरे देश में ये कोalition कंसेप्ट की मानसिकता पैदा नहीं हुई थी, और अब आ गई है। अभी आ गई। अभी सब लोगों को पता लगा कि बिना कोalition चलता नहीं। हम और सोनिया गांधी बात नहीं करते थे, बोलने लगे जी। तो लेकिन शरद पवार जी, अब ये सवाल सामने आता है कि इसके पहले कि ये सवाल मैं पूछूं आपसे, सोनिया गांधी से मतलब है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल वो ये है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो पाई? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत नहीं हुई। इससे सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी का जो है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जब तक कुछ न कुछ तालमेल नहीं होता, तब तक दूसरे राज्यों में होने की संभावना नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जहां तक एनसीपी है, हमारे इंटरेस्ट लिमिटेड है, और हम वहां कोई बहुत शक्तिवान है ऐसे हम कहते भी नहीं, और इसलिए वहां कांग्रेस ने उनके साथ बातचीत करने के लिए कोशिश की। मुझे मालूम नहीं, हुआ नहीं, और इसलिए वहां हुआ नहीं तो बाकी जगह पर भी होने की संभावना। तो महाराष्ट्र में और स्पेशली मुंबई में अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, सो डोंट यू थिंक दे विल बी कटिंग इनटू द माइनॉरिटी वोट अ लिटिल बिट? थोड़ा बहुत नुकसान होगा, मगर माइनॉरिटीज की भी एक मानसिकता मैं देख रहा हूं आजकल। माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा होशियारी से वोटिंग करने वाला सेक्शन इस देश में माइनॉरिटीज का है, और वो देखता है, और वो दिए, और खाली माइनॉरिटी नहीं, बाकी भी वोटर भी ये सोचने लगे कि सपोज मुझे XYZ को डिफीट करना है, और तब मेरा ही कोई नजदीक का और एक आदमी खड़ा है, मगर जब मुझे पता लगता है कि मेरा नजदीक का आदमी XYZ को डिफीट नहीं कर सकता और दूसरा कोई कर सकता है, तो लोग नजदीक का आदमी छोड़ देते हैं, जो डिफीट कर सकता है उसको मदद करते हैं। जी, that has been seen in the minorities, yes, because especially amongst all the certain specific sections. That is one. That ये कल तक आप कहते हो माइनॉरिटी में था, आज बाकी लोगों में भी है। आज आम लोगों में अपना वोट खराब नहीं होना चाहिए, ये मानसिकता तैयार हो रही है, और ये अच्छी है। जी, शरद पवार जी, ये एक आखिरी सवाल सोनिया गांधी जी के बारे में, उसके बाद आखिर में आपके बारे में बात करेंगे, जहां तक कि आपके बारामती चुनाव का सवाल है। सोनिया गांधी जी के साथ अब आपकी बातचीत हो गई है, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन जारी है। आप ने ये भी कह दिया कि ठंडे दस्ते में डाल दिया है जहां तक कि विदेशी मूल का सवाल है, क्योंकि अभी वो मुद्दा ही नहीं है। तो दूसरी पार्टी चलाने का मकसद क्या हुआ? नहीं, ये मुद्दा इस चुनाव के लिए नहीं है, ये चुनाव के लिए नहीं। वो मुद्दा कल आएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो जब तक इस बारे में पूरी सफाई नहीं होती, तब तक हम लोगों को जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक कमिटमेंट हमने दी है लोगों को।
जी। इससे हम दूर जा नहीं सकते। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चुनाव के बाद भले ही अगर कांग्रेस सोनिया जी को प्रोजेक्ट करे एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, तब आपको फिर भी आपत्ति होगी? नहीं, बात सीधी है कि सोनिया जी ने खुद कहा कि ये सब इशू वह पार्टी मिलकर तय करेगी। एंड दिस विल बी आफ्टर द इलेक्शन। एंड आफ्टर द इलेक्शन, तब इंटरनल मीटिंग में क्या लाइन लेना, तब हम बिल्कुल समझकर सोचकर जो हमें ठीक लगता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ये जरूर करेंगे। And that can be either way. You could decide either way, depending on the situation at that time. That will be consistent to our thinking. All right. And consistent to your thinking obviously would mean that So, you will be इसलिए against... वो आज इस बारे में कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। Okay. और खुद श्रीमती गांधी ने इस बारे में जिस तरह की भूमिका ली है, तो इसमें कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। Would you care to comment on the fact that Rahul Gandhi is standing for election from a meeting? See, for in this country, anybody who has completed 25, he got every right to contest election. And if suppose some youngsters are coming, it's a good thing. नए लोग आना चाहिए। मैं खुद चाहता था कि अभी हम लोगों ने थोड़ा दूर होना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। कई बार कोई कंपल्शन होता है, मगर ये नए लोग आने की प्रोसेस शुरू हो रही है, वो अच्छी है। और जहां तक आपके खुद का सवाल है, बारामती से आप कितने सालों से लड़ चुके हैं और कितने सालों से जीतते आ रहे हैं? जीतते जीतते थक नहीं गए आप? 67 से लड़ रहा हूँ, शायद ये 13वां चुनाव होगा। 13th election from 67, so that means 37 years and you've been an elected representative of Baramati, that area, continuously. All right, whether in the Lok Sabha or in the assembly, either way, same constituency, but and I owe to people because they are the people who are responsible for my growth, progress, everything in public life. And you've given a lot back to the area as well. नहीं, वो तो देना ही चाहिए। किसी ने भी, जिन लोगों ने, कौन थे शरद पवार, ये शरद पवार को इतनी बड़ी ताकत देकर पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने ले जाने का काम उन वोटरों ने किया। और इसलिए मेरा हमेशा, मेरी एक सिस्टम है, मैं चुनाव के लिए कम जाता हूँ, बाकी 5 साल जाता हूँ। और जैसे कई लोग कहते हैं कि हम लाखों वोटों से जीतूंगा, मैं कभी नहीं कहता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि मेरा भरोसा इन लोगों पर है। और हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दें कि अभी तक शरद पवार जी कभी 2,90,000, कभी 3 लाख, कभी 3.25 लाख, इतने ही वोटों से जीतते आ रहे हैं। और एक बार 4 लाख से भी। और इस बार, पिछली बार आप 2,98,000 वोटों से जीते थे, विच वॉज द हाईएस्ट इन महाराष्ट्र। द हाईएस्ट मार्जिन इन महाराष्ट्र वॉज 2,98,000। शरद पवार जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।